आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, वो हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, फिर उस कंडक्टर में करंट पास करेंगे, फिर देखेंगे हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है आज, फोर्स ऑन स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है इसके लिए सपोज let's consider uniform magnetic field. As you know that the uniform magnetic field is represented by equally spaced parallel lines. These are the equally spaced parallel lines. ठीक है, equally spaced parallel lines. So in this region the magnitude of the magnetic field at each and every point is same, and also the direction of the magnetic field at each and every point in this region is same. Okay, suppose B is the uniform magnetic field in this region. It is uniform. Okay, and now what we do here, as you know that अगर हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या करना है, एक कंडक्टर रखना है, फिर करंट पास करनी है। ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग दिस व्हाट विल हैपन टू द कंडक्टर कैरिंग करंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अगर हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पे एक पॉइंट चार्ज प्रोजेक्ट करते हैं, फायर करते हैं एट सम एंगल, एज यू नो दैट अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज हम फायर करते हैं एट सम एंगल, व्हाट हैपन्स टू इट, एज यू नो दैट अगर हम इसको फायर करते हैं एट सम एंगल विथ सर्टेन वेलोसिटी v इन, ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द एंगल हियर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. What happens to this charged particle? It experiences force. कितना फोर्स, वो किसके बराबर होता है? The force जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, the force experienced the charged particle which is projected in the uniform magnetic field is given by the magnitude of the charge times V cross B. Is this clear? What is Q? Q is the magnitude of the charge. And what is V? V is the velocity with which the charge is projected in the magnetic field at some angle. And what is B? B is the uniform magnetic field जिसमें हमने इसको प्रोजेक्ट किया. This is the force experienced by the point charge. ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. And there are three cases. ठीक है ना, so far as the motion of the charged particle in this magnetic field is concerned, there are three cases. Number one, if we project this charged particle in the direction of magnetic field, what happens? It follows a straight path. It experiences no force. अब यहाँ से देखिए, अगर मूव करेंगे, इसको फायर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल जीरो आएगा, तो जब जीरो आएगा साइन जीरो इज जीरो, so it means that the charged particle will not experience any force in the direction of magnetic field. Therefore, it will continuously move along the direction of magnetic field with a constant velocity. Okay, this is number one case. Second case is if we fire the charged particle at right angles to the direction of magnetic field. अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फायर करेंगे, then what will happen to this charged particle? It follows a circular track. Okay, and now अगर हमने पहला केस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फायर करेंगे इसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फायर करेंगे तो देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. ठीक है ना, वो कितना होगा वो फोर्स, यहाँ पे साइन जीरो आएगा, साइन जीरो इज मैक्सिमम, इन साइन जीरो इज मैक्सिमम इज इक्वल टू 1, तो फोर्स आएगा F इक्वल टू क्यू VB. This is the maximum force experienced when the charged particle is projected at right angle to the direction of magnetic field. In this case, due to this force, it follows a circular track. वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है. ठीक है, तो थर्ड वन, जनरल वन इज अगर हम किसी एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करते हैं, then what happens? It follows a helical path like this. ठीक है ना, ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. तो यहाँ पे now instead of point charge we have what? We have a straight conductor. ठीक है, तो again we will consider uniform magnetic field here, represented by equally spaced parallel lines. Equally spaced parallel lines. These are the magnetic field lines. Uniform magnetic field. Okay. अब इसी uniform magnetic field में हम क्या करेंगे, अभी इसमें रखना है एक स्ट्रेट कंडक्टर एट सम एंगल. ओके,
This is the magnetic field here. Suppose B is the uniform magnetic field, magnetic field induction. अब इसी में हम एक कंडक्टर रखते हैं. Let's consider a conductor, straight conductor, segment of a conductor. ये कंडक्टर है यहाँ पे. This is a conductor here. This is the cross section of the conductor. ये दिखाया मैंने यहाँ पे conductor. And as you know that generally the shape of the conductor is cylindrical. ठीक है ना. इसकी जो शेप होती है जनरली जो वायर होती है सिलिंड्रिकल वायर शेप की होती है. ठीक है ना. तो इसमें हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया. ये इसका क्रॉस सेक्शन है. ठीक है. सपोज यहाँ पर लिखेंगे हम. सपोज A be the cross sectional area of the conductor and L be its length of the straight conductor. ठीक है. जो हमने यहाँ पे रखा इसकी लेंथ L है और इसको हमने रखा किस में? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एट सर्टेन एंगल. ठीक है. यहां से मान लीजिए ये एंगल बना रहा है इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ. कितना एंगल? थीटा इज द एंगल. ठीक है ना. इज द स्ट्रेट कंडक्टर मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड. इज दिस क्लियर? यहां पे लिखेंगे थीटा क्या है? एंगल. ठीक है. द स्ट्रेट कंडक्टर makes with the magnetic field. Okay. And now अब हमने इसको यहाँ पे रख दिया. As you know that this conductor is electrically neutral. Net charge इसमें 0 होता है. There are two types of charge. एक होता है बाउंड चार्ज, दूसरा होता है फ्री चार्ज. बाउंड चार्ज जो इसमें आयन्स होते हैं, फ्री चार्ज जिनको हम कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी है. जितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन यानी जितना फ्री चार्ज है उतना ही बाउंड चार्ज है. सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नेट चार्ज का 0 है. तो इसके इर्द कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. ठीक है. अब देखिए अगर हम इस जो कंडक्टर है अगर इसमें हम करंट पास करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. ठीक है. देन व्हाट विल हैपन? करंट विल फ्लो. सपोज आई विद द करंट पास थ्रू इट. बिफोर द करंट अब इसमें करंट नहीं है. चार्ज इज एट रेस्ट. फ्री चार्ज वो भी रेस्ट पे ही है. ठीक है. ऑन एन एवरेज वो रेस्ट पे है. तो अगर इसमें करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. ठीक है. तो देयरफॉर इट एक्सपीरियंस नो फोर्स. इज दिस क्लियर? एंड व्हेन द करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर व्हाट हैपेंस? इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. वो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स. ठीक है. तो यहां पे हम अज्यूम करेंगे अब दिस इज एंड P, दिस इज एंड Q. Suppose current is flowing through the conductor from end P to end Q. I is the current. यहां से एंटर हो रही है करंट, यहां से निकल रही है करंट इस एंड से. I is the current leaving this end Q. Is this clear? यहां से एंटर हो रही है, यहां से निकल रही है. Is this clear? अब इसमें जब करंट फ्लो हो रही करंट मीन्स फुल ऑफ चार्ज. कौन सा चार्ज? फ्री चार्ज जो इसमें था. ठीक है ना. तो यहां से यहां तक इसमें फ्री चार्ज था, फ्री इलेक्ट्रॉन थे. अब वो ड्रिफ्ट हो रहे. क्या हो रहे? ड्रिफ्ट फ्रॉम वो ड्रिफ्ट हो रहे कहां से? फ्रॉम एंड Q टू एंड P. अगर करंट नीचे से ऊपर जा रही है इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट फ्रॉम Q टू P. अगर करंट नीचे से ऊपर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे होंगे कहां से? फ्रॉम एंड Q टू एंड P. उल्टी दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में. ठीक है ना. वो ड्रिफ्ट हो रहे होंगे. मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. दिस इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग विद वेलोसिटी Vd टुवर्ड्स द एंड P. इज दिस क्लियर? ओके. अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मान लीजिए इसमें जो टोटल फ्री चार्ज है वो है Q. वो है Q. सपोज यहाँ पे एज्यूम करेंगे Q बी द टोटल फ्री charge
in the conductor of length L. इसकी लेंथ हमने L कंसिडर की है, L विद द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L इसकी लेंथ है फ्रॉम P टू Q। तो इसमें जो टोटल फ्री चार्ज है वो हमने एज्यूम किया Q है। इज इट क्लियर? अब देखते हैं Q किसके बराबर है। यहाँ पे एक और चीज हम एज्यूम करेंगे, सपोज N बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अभी जो एक्सप्रेशन है इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज हम फायर करेंगे तब ये एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है। अब चार्ज जो फ्री चार्ज है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर द चार्ज Q जो है इट इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉट पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसलिए हम ये एक्सप्रेशन यहां पे यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू? अब इस पे कितना फोर्स एक्ट करता है, ठीक है ना, ड्यू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट थ्रू दिस कंडक्टर, इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, वी विल यूज हियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, डिवाइड दिस एंटायर कंडक्टर इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स, infinite number of segments, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, infinite number of segments, and then consider one such segment, एक सेगमेंट हम कंसिडर करेंगे यहाँ तो दिख रहा है बड़ा, पर ये इतना बड़ा नहीं है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इसकी जो लेंथ होती है टेंड्स टू 0 होती है, बहुत कम। ठीक है, अगर इसकी टोटल लेंथ L है, यहां से यहां तक L है इसकी लेंथ, ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, DL, डिफरेंशियल लेंथ। याद रखना, डिफरेंशियल लेंथ DL विद द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, ओके, क्रॉस सेक्शन इस एलिमेंट का वही होगा जो कंडक्टर का होगा। ओके, तो लेंथ DL है, एज क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यही एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे। ये इतना छोटा होगा, नियरली ऑफ द साइज ऑफ पॉइंट्स। ठीक है ना, जो पॉइंट साइज का होगा तकरीबन, ये बहुत छोटा होगा पॉइंट साइज का। देयरफॉर इसमें जितना जो फ्री चार्ज होगा वो फ्री चार्ज एक्ट करेगा एज पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, ये छोटा सा एलिमेंट, इस एलिमेंट में जितना फ्री चार्ज होगा वो एक्ट करेगा एज फ्री, दैट विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। अब यही पॉइंट चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये ड्रिफ्ट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम Q टू P। अगर करंट की डायरेक्शन ले लेंगे देन इसमें जो चार्ज है वो ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है विद वेलोसिटी VD। इज दिस क्लियर टू यू? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम Q टू P, व्हाइल एज जो करंट होती है इट इज कन्वेंशनल करंट, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। इज दिस क्लियर? ओके, तो जो करंट कन्वेंशनल करंट होती है कंडक्टर में, उसकी डायरेक्शन हम लेते हैं फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे ड्रिफ्ट हो रहा है इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज ऊपर ड्रिफ्ट हो रहा है। इज दिस क्लियर? तो हम पॉजिटिव चार्ज ही कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ। इज दिस क्लियर टू यू? ऐसा नहीं होता है मगर ऐसा, यानी कि अगर ये हम अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन हम कह सकते हैं इस तरह से, अगर नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, उसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ रहा है। ठीक है, ओके, सो दिस चार्ज DQ, इसमें चार्ज है, टोटल चार्ज Q है, तो इसमें कितना चार्ज होगा, बहुत कम चार्ज होगा। DQ से रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंशियल, यही चार्ज ड्रिफ्ट हो रहा है किस, विद वेलोसिटी VD फ्रॉम P टू Q। अब ये मूव कर रहा है। अब अगर ये चार्ज मूव कर रहा है तो इस पे विद वेलोसिटी V एट सर्टेन एंगल थीटा, विद द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो इस पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज गिवन बाय द रिलेशन दिस, ये हम यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? चलिए अब देखते हैं इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। डिवाइड द एंटायर करंट into large number of elements, then consider one such element, then the force on one such element of the conductor is the volume element,
वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर। टोटल कंडक्टर पे मान लीजिए टोटल फोर्स F एक्ट कर रहा है, तो इस छोटे से एलिमेंट पे कितना कर रहेगा, बहुत ही कम होगा, वो हम dF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। dF इज द फोर्स एंड इज इक्वल दिस विल एक्ट जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो इसका चार्ज कितना है, तो हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, इट इज dQ। अब यही dQ चार्ज मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है विद वेलोसिटी vd, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगी vd क्रॉस b। दिस इज द एक्सप्रेशन or the force experienced by this small volume element of charge dq which is drifting with velocity vd. Is this clear? Okay. And now keep it number second. अब dq कितना चार्ज है इसमें, हमने अभी ज्यूम किया and with a free charge number, free charge density we can say number of electrons, free electrons in unit volume. अगर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर इस कंडक्टर का वॉल्यूम है 2 यूनिट्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें 2 है। अगर 3 यूनिट्स 3 है, 4 यूनिट्स 4 है। इज दिस क्लियर? अब हमें एंटायर कंडक्टर कंसिडर नहीं करना है, हमें ये एलिमेंट कंसिडर करना है। इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, इसका क्रॉस एरिया है a, लेंथ है dl, तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट हियर, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट of the conductor, कितना इसका वॉल्यूम, इट इज क्रॉस एरिया A इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, इट इज dl, ये इसका वॉल्यूम है। अगर इतना वॉल्यूम है तो इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इतना वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में n है, तो इसमें होंगे n a dl, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इज दिस क्लियर टू? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इस एलिमेंट में। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, ठीक है ना, तो या कह सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स है, उनका चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, 2 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना होगा 2E, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं E इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो टोटल चार्ज कितना होगा, देयरफॉर टोटल चार्ज, कौन सा चार्ज, फ्री चार्ज, फ्री चार्ज ऑफ द एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट में फ्री चार्ज कितना होगा, फिर E इस तरह से लिखे NEADL, E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज E? इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अब इतना नेगेटिव, फ्री नेगेटिव चार्ज है इसमें इस एलिमेंट में, ठीक है ना। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं किस डायरेक्शन में, फ्रॉम Q टू P, तो हम कह सकते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, पास चार्ज इज ड्रिफ्टिंग फ्रॉम P टू Q। इन अदर वर्ड्स, जैसे कि अभी मैंने बता दिया, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही ले लेंगे, ठीक है। सो NEADQ, इट इज द टोटल फ्री चार्ज, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, DQ से। सो DQ इज NEADL। तो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे, व्हाट विल यू गेट, इक्वेशन सेकंड बिकम्स, शाबाश, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल DQ। DQ मीन्स इसमें कितना चार्ज है, नेट चार्ज वो है NEADL, NEADL, ओके, VD क्रॉस B। इसके लिए इसको स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देन इट विल बिकम DF, मैग्नीट्यूड खाली लेंगे अब, इज NEADL VD B साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ओके। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, NEADD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके साथ रखेंगे हम, DL सेपरेट लिखेंगे हम, DLB साइन ऑफ थीटा, ओके। Since we know that there is a relation between drift velocity and current, and the relation is
करंट इन द कंडक्टर इज इक्वल टू NEA/VD। ठीक है ना, ये पहले ही हमने स्टार्ट में ये जो करंट लिस्ट है वहां पे हमने राइट की है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज current is equal to NEA/VD. N is the free electron density, is charge on electron, is cross area of the conductor, VD is the drift velocity of electrons. This is the relation. So ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, then we can write as DF is equal to NEA/VD के बदले I आएगा, यहाँ से DL B sin of theta. Okay, and now as you know that force the vector quantity, ये खाली मैग्नीट्यूड बता रहा है हमें इसका, इक्वेशन नंबर 3। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज DF इज इक्वल टू I। अब देखिए यहाँ पे ये जो DL है, इज लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, इट इज अ स्केलर बट वी विल टेक इट एज अ वेक्टर। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। इसको कहते हैं लेंथ वेक्टर ऑफ द एलिमेंट। DL अगर हम वेक्टर ले लेंगे, एरो रखना पड़ेगा इसको, तो इसको हम कहते हैं, पहले हम इसको लेंथ एलिमेंट कहते थे, अब हम अगर हमने इसको इसके ऊपर एरो रख दिया तब हम इसको कहेंगे लेंथ वेक्टर ऑफ द एलिमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? फिर अगर हम इसको I से भी मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट या करंट वेक्टर या करंट एलिमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? आइडियल। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से जो DL है वो विल टेक इट एज ए वेक्टर, तो इसको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जहां से करंट फ्लो हो रही है यही हम इसको डायरेक्शन देंगे, ये है इसकी डायरेक्शन। तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है DL। इज क्लियर? ओके, एंड दिस DL इज मेकिंग एंगल थीटा विद व्हाट? विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इज दिस क्लियर? शाबाश। तो वेक्टर फॉर्म में ये इस तरह से लिख सकते हैं, I DL क्रॉस B लिख सकते हैं ना, बिकॉज क्योंकि हमारे पास है ना क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स, A क्रॉस B किसके बराबर होता है? AB साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B। A दिस इज B, इनके दरमियान एंगल है थीटा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट AB साइन थीटा के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे भी DLB साइन थीटा के बदले हम DL क्रॉस B लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? शाबाश। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, आइडियल करंट एलिमेंट in the uniform magnetic field when this current element moves with velocity VD. Is clear? अगर इसमें करंट I है तब इस स्मॉल से एलिमेंट करंट एलिमेंट की पे जो फोर्स इट विल एक्सपीरियंस वो किसके बराबर होगा? I DL क्रॉस B। इज दिस क्लियर? यह हमने एक्सप्रेशन डिराइव की है। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस एलिमेंट ओनली। मगर अब पूरा कंडक्टर हमें कंसिडर करना है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। इस एलिमेंट की वजह से इतना फोर्स, दूसरे एलिमेंट उसकी वजह से इतना ही फोर्स, मगर वहां पे भी ये स्ट्रेट कंडक्टर है उतना ही फोर्स वो भी उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि लेंथ सेम है, उसमें भी चार्ज डेंसिटी उसमें भी सेम है, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंडक्टर भी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट है उसमें भी इतना फोर्स पड़ेगा, तीसरा एलिमेंट उसमें भी उतना ही फोर्स, क्योंकि हर एक एलिमेंट सेम एंगल बनाता है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इज दिस क्लियर? तो नेट फोर्स, ऑल द एलिमेंट्स आर कंटिन्यूअस, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। नाउ नेट फोर्स experienced by the entire conductor in the magnetic field is given by F. This net force is equal to integral with respect to the force, integral of this over the entire length of the conductor. This is called summation of all DFs. This is summation, continuous summation of all the DFs. ठीक है ना? Summation of all DFs. DFs means force exerted by each and every element in this conductor. ठीक है? तो हर एक एलिमेंट कितना फोर्स है उस पे पड़ेगा, इतना फोर्स। तो DF के लिए पुट करेंगे यहाँ पे, और for DF, so it will become integral I DL
क्रॉस बी. ओके, I is constant over the entire length L. I is constant, ये बाहर आएगा, यहाँ पे बनेगा ये over the entire length L dl d sin of theta. Is this clear? B is uniform magnetic field, ये भी constant है, ये भी बाहर आएगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं I dl. तो हर एक एलिमेंट जो करंट एलिमेंट होगा वो सेम एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बिकॉज कंडक्टर इज स्ट्रेट. तो साइन थीटा जो है वो भी कांस्टेंट होगा, तो वो भी बाहर आएगा. देयर रिमेन्स ओनली dl इनसाइड. ठीक है, तो dl इज स्मॉल लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट. जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो टोटल लेंथ कितनी होगी? I dl साइन ऑफ थीटा, टोटल लेंथ इज L. इज दिस क्लियर? तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, I, it is not dl, it is b बाहर आएगा, it is b here, याद रखना. I b sin theta L. ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. L पहले लिखेंगे L b sin of theta. ओके, in vector form this is force experienced by what? The entire conductor. इस स्केलर फॉर्म में यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. In vector form, therefore, it can be written as F is equal to I L cross B. याद रखना, L cross B. Is this clear? शाबाश. And this is the expression, final expression for the force experienced by the straight conductor placed where in the uniform magnetic field. And is यहाँ पे फिर से लिखेंगे F is equal to I L cross B. This is the force exerted by the straight conductor. This is the force, and now अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे. This is net force exerted by the conductor. अब इसकी डायरेक्शन क्या है? It is defined by the right hand thumb rule or right hand screw rule because it is L cross B. F is equal to what? L cross B. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो F होगा फोर्स वो होगा परपेंडिकुलर टू व्हाट? टू अ प्लेन कंटेनिंग L एंड B. ठीक है ना, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में हमने डिस्कस किया या आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में क्रॉस प्रोडक्ट. तो F होगा परपेंडिकुलर टू अ प्लेन कंटेनिंग L एंड B. अब देखते हैं L कहाँ पे है. दिस इज द L लेंथ वेक्टर, यहां से यहां तक अब है L टोटल लेंथ L वेक्टर. इसको कहते हैं वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर. दिस कॉल्ड वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर. The vector length of the conductor. This is the vector length of the conductor. ठीक है ना? And what is B? This is B. B is the magnetic field direction. Okay? This is B here. Okay, both lie where? On a plane. Whiteboard plane. Whiteboard का जो plane है उस पे lie करते हैं. Is this clear? अब इसका मतलब क्या हुआ? अब जो force होगा वो होगा perpendicular और perpendicular inwards, perpendicular whiteboard, inwards और perpendicular outwards. Is this clear? And it is defined by the right hand thumb rule or right hand screw rule. Right hand thumb rule क्या कहता है? Hold your right hand so that the curvature of fingers gives the sense of L cross B. ठीक है ना? In this direction of L cross B. L cross B represent कर L to B. ठीक है? Then stretch your thumb gives the direction of what? Force exerted the conductor. In this case, this is length vector. ठीक है ना? L cross B हमें करना है L क्रॉस बी इस तरह से होगा. Is this clear? L क्रॉस बी. फिंगर्स रिप्रेजेंट L क्रॉस बी. अगर B क्रॉस L होता तो इस तरह से रखना होता, पर हम ये लिखते हैं L क्रॉस B. B क्रॉस L नहीं लिख सकते, याद रखना. We can't write B क्रॉस L. तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी. ठीक है, इट इज ऑलवेज L क्रॉस B. अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी, याद रखना. तो L क्रॉस B, तो थंब इज इनवर्ड्स, देयरफॉर इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ F इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स. परपेंडिकुलर इनवर्ड्स इन दिस केस. ओके, अब अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे होगी, उस वक्त जो लेंथ वेक्टर है या वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे होगी. उस वक्त यू हैव टू होल्ड द थंब इन दैट केस लाइक दिस. उस वक्त परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इज दिस क्लियर? शाबाश.
Now we will discuss some special cases. Case number 1, some special cases. Okay. Case number 1. If the conductor is held where in the magnetic field, in the direction of magnetic field. अगर हम कंडक्टर कैसे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर रखेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये कंडक्टर है. सो I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है. एंड L वेक्टर बी इट्स वेक्टर लेंथ. देन इसको हमेशा याद रखना, वेक्टर लेंथ. ये वेक्टर लेंथ होती है. इट इज नॉट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट इज द वेक्टर लेंथ. बट इन केस ऑफ a straight conductor, it is the magnitude of the vector length is the actual length of the conductor. याद रखना. जब मैं ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे. तो अगर हमने ये रखा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन यानी कि जो एंगल होगा वेक्टर लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, इस मैग्नेटिक फील्ड है इनके दरमियान जो लेंथ एंगल होगा वो क्या होगा, 0 और 180. 180 कब होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगी. ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट, उस वक्त 180. ठीक है. देन व्हाट इज द फोर्स? फोर्स वुड बी इक्वल I LB साइन ऑफ थीटा, है ना. L क्रॉस B इज LB साइन थीटा. थीटा के बदले 0 और 180. अगर 0 देंगे तो साइन 0 is 0. अगर 180 देंगे साइन 180 is also 0, तो you will get 0 force. So it means that if the conductor carrying current is held parallel to the magnetic field, it experiences no force. ठीक है ना. उस वक्त इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है. स्ट्रेट कंडक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट कंडक्टर. ओके. एंड नाउ द सेकंड केस इज देयर. इफ द कंडक्टर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब हम परपेंडिकुलर रखेंगे इस तरह से. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. कंडक्टर रखेंगे अब परपेंडिकुलर. ठीक है. सपोज I विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यहां से निकल रही है करंट I. L with the vector length. Okay. And now, in this case, the angle is 90. Then, what will be the force? In this case, the force would be I L B sine of 90. And sine of 90 is 1, that is the maximum value. So, L B is maximum. I L B. उसका जो फोर्स होगा वो होगा मैक्सिमम फोर्स. ठीक है. अगर कंडक्टर को हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है, इन दिस केस द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स. दिस इज द मैक्सिमम फोर्स आई एल बी. इसी तरह से जैसे कि अगर हमने चार्ज को फायर किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उस वक्त ये चार्ज जो है इस पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करता है. ठीक है ना. मैक्सिमम वी यानी क्यू वी बी के बराबर होता है. इसी तरह से कंडक्टर भी अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे उस वक्त भी इस कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट करता है. इज दिस क्लियर? ओके. इन दिस केस व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एफ? इन दिस केस अगर कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड को, फोर्स भी परपेंडिकुलर है, ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन दिस केस इफ ऑल द थ्री फोर्स एल एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब हम उस वक्त दूसरा रूल भी यूज कर सकते हैं टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है ना. उसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? स्ट्रेच योर फर्स्ट मेजर फिंगर एंड थंब so that they are of your left hand, so that they are mutually perpendicular to each other like this. If the first finger represents the direction of magnetic field, ठीक है, and the middle finger represents the direction of current, it is upwards, ठीक है, then the stretched thumb gives the direction of force. तो इस वक्त इस कंडक्टर पे जो फोर्स होगा वो होगा परपेंडिकुलर इनवर्स, अगर इस तरह से रखेंगे. ठीक है. अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह से मान लीजिए ऊपर से आ रही है करंट, ठीक है, तो अब जो करंट यानी कि लेंथ वेक्टर है वो नीचे की तरफ है, लेंथ वेक्टर. ठीक है. इन दिस केस तो करंट भी इस तरह से जा रही है. होल्ड योर लेफ्ट हैंड. दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. कहां जा रही है? नीचे. देन द स्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट?
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस वक्त जो इस पर फोर्स होगा वो होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. Is this clear? So in this case, if all the three are perpendicular to each other, then we can use second rule to define the direction of the force. एक रूल तो पहले ही है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल. उसके अलावा हम फ्लेंच लेफ्ट हैंड रूल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. Is this clear to you? ये स्पेशल केसेस. अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. अब मान लीजिए मैंने ये जो एक्सप्रेशन डिराइव की है, या इसमें हमने ले लिया स्ट्रेट कंडक्टर. हमने ले लिया स्ट्रेट कंडक्टर जो फोर्स एक्सपीरियंस जो इस पे फोर्स एक्ट करता है. एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स इट इज कॉल्ड आई एल क्रॉस बी. दिस इज द फोर्स, नेट फोर्स acting on a conductor in magnetic field. It is not applicable only for the straight conductor. ये खाली straight conductor के लिए applicable नहीं है. It is applicable to the conductor of any shape and size. ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का कंडक्टर हो, ठीक है ना. So the force exerted the conductor does not depend upon the shape of the conductor. Is this clear? Let me tell you. ये मैं explain करूंगा यहाँ पे. Let me explain you. मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, represented by equally spaced parallel lines. These are the magnetic field lines of magnetic field induction B. अब अगर हम इसमें कंडक्टर रखेंगे ऑफ एनी शेप, मान लीजिए इस तरह से, ये है कंडक्टर, दिस इज पीस ऑफ कंडक्टर, इसका एंड P है, दिस एंड Q. इज क्लियर? अब इस इट इज नॉट ए स्ट्रेट कंडक्टर, ये कर्व्ड कंडक्टर है, इस पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, नेट फोर्स. यही एक्सप्रेशन यूज करते हैं यहाँ पे भी. मगर ये जो L है ना, इट इज वेक्टर लेंथ, याद रखना. इट इज नॉट द टोटल लेंथ. इसकी टोटल लेंथ है L, इसकी टोटल लेंथ है L सपोज, पर इसकी वेक्टर लेंथ क्या है? वेक्टर लेंथ इज द represented by an arrow drawn from the point one end P to the second end, जहां से करंट निकलती है. एक एरो ड्रा करेंगे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम द एंड ऑफ द कंडक्टर. कौन सा एंड? जहां से करंट कंडक्टर में एंटर हो रही है, टू द एंड ऑफ द कंडक्टर, जहां से करंट निकलती है. ठीक है, वहां तक हम एरो ड्रा करेंगे. ये जो हमने एरो ड्रा किया, दिस रिप्रेजेंट्स द वेक्टर लेंथ. ठीक है, मान लीजिए एक्चुअल लेंथ है L डैश, तो L वेक्टर जो है इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. अगर स्ट्रेट कंडक्टर होगा, स्ट्रेट कंडक्टर में क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर में एक चीज है, यहां पे मैं बता दूं आपको, वहां पे जो वेक्टर लेंथ का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर लेंथ का, वही होगी एक्चुअल लेंथ भी. दिस इज द कंडक्टर, डिफरेंट मार्कर से दिखाएंगे ये. दिस इज द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ओके, यहां पे हमने एक एरो ड्रा किया फ्रॉम वन एंड टू सेकंड एंड, फ्रॉम द एंड जहां से करंट एंटर हो रही है, ठीक है ना, टू द एंड, उस एंड तक जहां से करंट निकलती है बाहर. इज इज क्लियर? तो ये जो एरो मैंने ड्रा किया, इसी को हम कहते हैं व्हाट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स. इज इज क्लियर? इसी को कहते हैं वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर. दिस कॉल्ड वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर. जो यहाँ पे L वेक्टर है ना, इट इज द वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इट इज नॉट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, याद रखना. ठीक है, तो अगर हम यही यूज करेंगे, मान लीजिए इसको हम डिवाइड करेंगे टू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एक एलिमेंट आ जाएगा. देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन एलिमेंट इज गिवन बाय वन सच एलिमेंट इज इक्वल टू I dl क्रॉस b. ओके, अब जो dl है, इट इज द वेक्टर लेंथ, याद रखो, वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ दिस एलिमेंट. ओके, एंड नाउ टोटल फोर्स अगर मेजर करना होगा, दिस द फोर्स दिस एलिमेंट. अब टोटल फोर्स, देयरफॉर टोटल नेट फोर्स ऑन द एंटायर conductor is given by F equal to integral of df.
ठीक है। ओके, पुट फॉर DF यू विल गेट I बाहर आएगा, इट इज कांस्टेंट, देयर रिमेन्स इनसाइड DL क्रॉस B. Okay, and now it can be written as I DL क्रॉस B. ठीक है ना, DL इज द वेक्टर लेंथ, याद रखना वेक्टर लेंथ है ये। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में, DL B साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं बिकॉज A क्रॉस B इक्वल AB साइन थीटा। तो ये A है यहाँ पे DL, पर इसको खाली ऊपर एरो भी रखेंगे हम, मॉड भी रखेंगे, टू पैरेलल लाइंस भी रखेंगे इसमें। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज द व्हाट वेक्टर लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अगर खाली DL लिखेंगे तो उसका मतलब है लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अगर इस तरह से लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लेंथ ऑफ द एलिमेंट, दिस कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर लेंथ ऑफ द एलिमेंट, दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन करनी है व्हाट द इंटरनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जब हम, तो यहां पे देखिए हर एक एलिमेंट जब हम वेक्टर लेंथ लेंगे, ठीक है, तो यहां पे जो B है ये बाहर आएगा। अब बहुत सारे एलिमेंट्स है वेक्टर लेंथ। ओके, दिस इज द DL वेक्टर है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, B कांस्टेंट है, इट इज यूनिफॉर्म, ये बाहर लिखा हमने DL साइन थीटा। ओके, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, तो ये हमें लेंथ जो लेनी है, लेंथ कौन सी लेंगे हम, वेक्टर लेंथ, नॉट दिस एक्चुअल लेंथ, इट्स द वेक्टर लेंथ। वेक्टर लेंथ मीन्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, पॉइंट P टू पॉइंट Q, इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, तो टोटल वेक्टर लेंथ क्या होगी इस वक्त, दिस इज कॉल्ड टोटल वेक्टर लेंथ। अगर इंटीग्रेशन करेंगे, अगर ये तो टोटल वेक्टर लेंथ होगी P टू Q, तो इसी का ये छोटा एलिमेंट है वेक्टर लेंथ DL। इज दिस क्लियर? तो ये पूरी कंडक्टर जो वेक्टर लेंथ है ये एक ही एंगल बनाता है थीटा विद व्हाट, विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, तो थीटा इज कांस्टेंट। जब हम ये वेक्टर लेंथ ले लेंगे इंस्टेड ऑफ दिस एक्चुअल लेंथ, तब ये बनेगा यहाँ पे B L वेक्टर लेंथ साइन ऑफ थीटा। इज क्लियर टू यू? तब हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो याद रखना खाली L नहीं लिखना है, अगर खाली L लिखेंगे तो L से पता चलेगा शायद इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इट इज नॉट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट इज द वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सो वेक्टर लेंथ इज द represented by an arrow drawn from the one end to another end, from the end through which the current enters the conductor to the end where the current leaves the conductor. Okay, so इस तरह से ही लिखते हैं। अब ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे हम। So F is equal to I B L साइन ऑफ थीटा, याद रखना। तो आमतौर पर हम खाली L लिखते हैं, तो खाली L नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना, मॉड ऑफ वेक्टर L लिखना चाहिए। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर लेंथ का मतलब ये है दिस लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ, नॉट द एक्चुअल लेंथ। ओके, ये याद रखना। तो एक्चुअल लेंथ नहीं लेनी है। अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर रखेंगे तो उस वक्त जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर लेंथ होगी वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी उनके साथ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर कर्व्ड कंडक्टर होगा उस वक्त ये डिफरेंट होगा, उस वक्त एक्चुअल लेंथ ज्यादा होगी, वेक्टर लेंथ कम होगी। इज दिस क्लियर? इट इज जस्ट लाइक, जैसे कि पहले मैंने बता दिया, जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट है। डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। वैसा ही कंसेप्ट, उसी तरह से ये कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, अब एक केस यहाँ पे मैं बता दूं, तो इसका मतलब ये हुआ, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, द फोर्स कौन सा फोर्स, नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इन यूनिफॉर्म magnetic field
does not depend on the shape of the conductor. ये शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर हो, अगर शेप हम, ठीक है ना, अगर मान लीजिए इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, 2 पॉइंट्स इनिशियल 2 एंड्स, अगर 2 एंड यहाँ पे होंगे, एक एंड यहाँ पे पी एंड यहाँ पे है, क्यू एंड यहाँ पे है, एक कंडक्टर इस तरह से, दूसरा कंडक्टर इस तरह से, तीसरा कंडक्टर इस तरह से, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडक्टर पे भी वही फोर्स एक्टिव होगा, इस कंडक्टर पे भी वही फोर्स, उतना ही फोर्स एक्टिव होगा जितना फोर्स इस कंडक्टर पे होगा। ये स्मॉल कंडक्टर है, ये इससे बड़ा कंडक्टर, ये इससे बड़ा कंडक्टर है, मगर हर एक कंडक्टर का जो एंड है कहाँ पे है, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स पे, पी एंड क्यू पे, ठीक है। इट्स क्लियर टू यू? सो इट मीन्स दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट, द शेप ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ one end and the position of second end of the conductor. उनकी पोजीशन क्या होगी उस पर डिपेंड करता है। इज क्लियर? तो यही वजह है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक एग्जांपल दे देते हैं। इसमें हम रखेंगे एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर, दिस इज सेमी सर्कुलर कंडक्टर of radius r, or the radius here is the center O. It is a semicircular conductor. Okay, it has 2 ends, this end P, this end Q. Current goes from P to N, P to Q. Is this clear? Then what is the force exerted by this semicircular conductor which is placed in uniform magnetic field? The force exerted by the semicircular conductor is given by, हमारे पास रिलेशन है F is equal to I B vector length साइन ऑफ थीटा। आई डी यू कैन राइट, या वेक्टर लेंथ पहले लिखेंगे, हम इस तरह से लिखना चाहिए। अच्छा तरीका ये है कि पहले वेक्टर लेंथ लिखेंगे उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे भी पहले वेक्टर लेंथ फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज द वेक्टर लेंथ इन दिस केस? ड्रॉ वेक्टर लेंथ इज नॉट द एक्चुअल लेंथ, जैसे पहले मैंने बता दिया। एक्चुअल लेंथ इज पाई आर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो वेक्टर लेंथ है, ड्रॉ एन एरो फ्रॉम पी टू क्यू, दिस एरो, इसकी लेंथ क्या है, डायमीटर, यानी कि 2 r इज द लेंथ। सो यहाँ पे वेक्टर लेंथ आएगी 2 r b साइन ऑफ थीटा। सो यू कैन राइट 2 i r b साइन ऑफ थीटा। दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग बाय द सेमी सर्कुलर कंडक्टर। अब अगर पूरा सर्कुलर कंडक्टर होगा, सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है, current is going like this, it has no ends, हाँ, तो सर्कुलर लूप है ये, इसमें एंड नहीं है। तो इसमें उस वक्त फोर्स कितना होगा, what is the force experienced by it? The vector length पहले देखेंगे of the circular loop, ठीक है ना। सर्कुलर लूप, what is the vector length? It is 0. How? अगर यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ले लेंगे तो फाइनल पॉइंट भी यही होगा। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं। सो व्हाट इज द वेक्टर लेंथ? वेक्टर लेंथ इस वक्त 0 होगी, ठीक है ना। सो वेक्टर लेंथ ऑफ एनी क्लोज्ड लूप, एनी क्लोज्ड कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ठीक है। देयरफॉर उस पे जो नेट फोर्स होगा वो भी 0 होगा। इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा, अगर इसी तरह से स्क्वायर कंडक्टिंग लूप ले लेंगे, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? 0। अगर कोई भी किसी भी शेप का मगर क्लोजर होगा, इस तरह से करंट रखेंगे, व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? इट इज 0। सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर in uniform magnetic field does not depend upon the shape of the conductor. It depends only on what? The vector length of the conductor. And what is vector length? Vector length is the shortest length between its 2 ends.